अभी शेयर मत करिए, शेयर से पहले बताना पड़ेगा। जी गुड आफ्टरनून। आज का आपका टॉपिक है पेलेनोलॉजी, pollen morphology and biology. Objectives of palynology is to enumerate and identify
Important perennological features of angiosperms. Second, relate these features to plant systematics or taxonomy. Third, to demonstrate taxonomic evidence in palynology. So these are the three main objectives of palynology. What is palynology? Palynology शब्द को लिया गया है पेलिनोस माने डस्ट is the science of pollen grains and spores. Pollen grains are male gametophytes or reproductive cells of a flowering plant. यहाँ पे जो बाईं तरफ आप देख रहे हैं गुलाबी रंग के ये 3 पॉलिन ग्रेन दिखाए गए हैं. Now what is pollen biology? Pollen grain of angiosperms. आप देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. आउटरमोस्ट लेयर इज नोन एज एक्साइन. ये सारी लेयर प्रोटीनेसियस होती हैं. देन इंटाइन होती है. बीच बीच में एपर्चर्स होते हैं जिनकी संख्या वेरी करती है. देन जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल न्यूक्लियस एंड ट्यूब सेल साइटोप्लाज्म. इस चित्र में जैसे सीड अंकुरित होता है उसी तरह पोलन ग्रेन का अंकुरण दिखाया गया है, जर्मिनेशन दिखाया गया है कि कैसे जर्म पोर के द्वारा पोलन ट्यूब बनती है लेटर ऑन, और उस पोलन ट्यूब के द्वारा जो मेल गैमीट है वो ओवम तक पहुंचता है. Pollen grains consist of a hard outer wall known as exine and an inner softer wall intine, which encloses the cytoplasm with its cells, that is nuclei and organelles. तो pollen grain एक तरह से complete cell है एक. A pollen grain contains the male gamete of the angiosperm plant. Pollen has two functions, reproduction and reward of visitors. The outer layer of a pollen and spores often contains a special compound, sporopollenin, which resists degradation by various chemicals, bacteria and even fungi. अभी एक वर्ड यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है, रिवार्ड ऑफ विजिटर्स. फ्लावर्स पे कौन कौन से विजिटर्स आते हैं? बेसिकली इंसेक्ट्स है. द pollen wall is designated to protect the sperm nucleus from desiccation and irradiation during transport from the anther to the stigma. Pollen grains come in a wide variety of shapes, most often spherical, sizes and surface markings, which is characteristic of the plant species, especially in different angiosperms. Now come to the main aspect of palynology and systematics. Palynology is used in phylogenetic analysis. It can be utilized in plant identification on the basis of extant plants and fossil plants. So paleopalynology ये फॉसिल विज्ञान की एक शाखा है. इसको पैलियोबॉटनी भी कहते हैं. मतलब पैलियोबॉटनी की एक पार्ट है. पास्ट प्लांट कम्युनिटीज, क्लाइमेट, बायोजियोग्राफी एंड इवन माइग्रेशन वगैरह भी पता लग जाता है pollen grains से. So the morphology of the pollen grains form the basic criteria for their identification.
The paleontological features of a spore or pollen grain can often be used to identify a particular taxon. मतलब taxonomic group of any rank. जैसे जीनस है, स्पीसीज है, फैमिली है. Pollen data provides information of changes in vegetation, climate and human disturbance of terrestrial ecosystems. हम उनके आधार पे ये भी अध्ययन कर सकते हैं. Pollen analysis. Sediments are collected. Pollen grains are isolated from the sediments matrix via chemical treatments. Isolated pollen grains are mounted on to a glass slide and they are identified and quantified under a microscope. Now, what are the paleontological features used in plant systematics or plant taxonomy? Pollen nucleus, number, pollen storage products, pollen unit, pollen polarity, pollen aperture, pollen size, pollen shape, pollen sculpturing, जो कि एक्साइल लेयर में होती है बेसिकली, pollen wall structure. ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम इस दौरान अध्ययन करते हैं. Pollen nucleus number, binucleate versus trinucleate. This is a original diagram showing the tube cell with generative cell. Binucleate plant families, जैसे टेट्रास्केंसिया है, लिलिएसी के बहुत सारे मेंबर हैं, रोजेसी है और कंपोजिटी के मेंबर्स हैं. पॉलिन न्यूक्लियस नंबर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया ट्राइन्यूक्लिएट कंडीशन दिखाई गई है. एक तो ये ट्यूब न्यूक्लियस है और दो स्पर्म न्यूक्लियाई है. ये ओरिजिनल डायग्राम है जिसमें कि पॉलन ग्रेन कॉन्क्रीट दिखाया गया है. पॉलन ट्यूब है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्पर्म न्यूक्लियाई है या मेल न्यूक्लियाई है. पॉलिन न्यूक्लियस नंबर यहाँ पर भी एकदम क्लियर कर दिखाया है. ये कैरियोफिलेसी में पाया जाता है, फैमिली कैरियोफिलेसी. ये ट्राइन्यूक्लिएट कंडीशन है 1, 2, 3. Pollen storage product. Pollen grains contain high energy storage reserves. These are composed of either starch versus oil. कहा भी जाता है कि pollen grain की वजह से शहद या हनी एक कंप्लीट फूड माना जाता है, क्योंकि उसमें तरह तरह के प्रोटीन्स मिलेंगे आपको, क्योंकि हनी बीज पता नहीं कितने तरह के प्लांट से वो नेक्टर लाती है कलेक्ट करके, तब एक लंबी प्रोसेस के बाद शहद का निर्माण होता है. तो पहला हो गया स्टार्च, पोएसी, राइजोफोरेसी में विशेष रूप से हम देखते हैं. यदि इसके पॉलन ग्रेन यदि अध्ययन किया जाए तो उनमें स्टार्च और ऑयल की मात्रा मिलती है. दिस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी फाइलोजेनेटिकली इंफॉर्मेटिव इन एंजियोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज. Pollen unit. Pollen unit refers to the number of pollen grains united together at the time of the release. जैसे यहाँ पे दिखाया मोनेड. मोनेड माने सिंगल pollen grain है. Single and unfused pollen grain. Example majority of angiosperms. ये हिबिस्कस में है. This is nymphaea का दिखाया गया केस. Pollen unit मोनेड कंडीशन आप देखेंगे तो बहुत सारी फैमिलीज में देखने को मिलती है. जैसे बिगोनिएसी है, लाइथ्रेसी है, रूबिएसी है, कुछ फैमिली आपके सिलेबस में भी है, मालवेसी है, यूफोबिएसी है एंड ऑक्सिलेटेसी. ये डायड कंडीशन है, दो पोलन ग्रेन एक साथ रिलीज होते हैं. डायड कंडीशन बहुत कॉमन फीचर नहीं है, जैसे क्लोरेंथेसी फैमिली है उसमें पाया जाता है. कई बार हम देखते हैं टेट्राड कंडीशन में, मतलब चार एक साथ पोलन, 4 pollen grains fused together.
टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं इसको। टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड इरिकेसी का एग्जाम्पल है, मिंट फैमिली कहलाती है इरिकेसी। और ये करेक्टरिस्टिक्स हमको फेबेसी में भी देखने को मिलता है, जैसे माइमोसा पुडिका, छुमुए के पौधे में। ये सारे आप देख रहे हैं टेट्रागोनल टेट्राहेड है, केवल एक आइडिया देने के लिए। फिर डिकसेट टेट्राहेड है। pollen grains are in two pairs arranged at right angle to the one another। देखिए शब्दावली, जैसे अपोजिट डिकसेट में आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, वही मतलब यहाँ पर एट राइट एंगल टू वन अनदर, वहां पे हम पढ़ते हैं लीव्स का अरेंजमेंट, अपोजिट डिकसेट। ये पॉलीहेड कंडीशन है, बहुत सारे पॉलीहेड, दैट इज मल्टीपल ऑफ 8 फ्यूज ग्रेन्स एक साथ आपको रिलीज होते हैं। Research studies on pollinate systematic pollen morphology of family Fabaceae, that is Leguminosae, 2003 में यह अध्ययन किया गया है, उसकी ये बहुत सारी रिपोर्ट दिखाई गई। खैर आपको इतना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। ये पॉलीहेड कंडीशन है फेबेसी में, यहाँ पे मल्टीपल पॉलिन ग्रेन्स एक तरह से एक साथ बाहर निकलते हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी संरचनाएं बनती हैं, विशेष संरचनाएं बनती हैं, जैसे आपने बीएससी सेकंड ईयर में एस्क्लेपिडेसी फैमिली में पढ़ा है, और भी कुछ फैमिलीज में मिलती जुलती संरचनाएं बनती हैं, जैसे पॉलिनियम। एक तो है एंथर और एक है पॉलिनियम, ये आपको ऐसे समझना होगा। जनरली पॉलन ग्रेन्स एंथर में होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में थोड़ा हटके है, उसमें हटके संरचनाएं बनती हैं, जैसे फैमिली एपोसाइनेसी, ऑर्किसिडेसी एंड एस्क्लेपिडेसी में। तो एस्क्लेपिडेसी में जैसे कैलोट्रोपिस, मदार के पौधे में देखेंगे आप, तो वहां पे ये पॉलिनियम संरचनाएं देखने को मिलेंगी, जो कि एक तरह से आप देखेंगे लंग जैसे दो लंग्स है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, और इनके अंदर इन थैली जैसी संरचनाओं में पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, परागकण भरे होते हैं। So let's remember polyhead units में भी मोनैड, डायड, टेट्राहेड, पॉलीहेड एंड पॉलिनियम, जो कि एक विशेष संरचना है, स्ट्रक्चर है, जो कि कॉमन फीचर नहीं है सारी फैमिलीज। Now come to the pollen polarity. It refers to the position of one or more apertures related to spatial reference। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन समझेंगे, आ जाएगा समझ में। Observing a pollen grain from the direction of a pole is known as polar view। Observing from the equatorial direction is an equatorial view। This is apolar condition। Types of polarity आप देख रहे हैं, तो ये apolar आपका अरेंजमेंट है। This is heteropolar। This is ordinate diagram, this is diagrammatic। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं आपको, apertures दिखाई दे रहे हैं। This is isopolar, एक समान दिखाई दे रहा है, कुकुरबिटेसी का ये आपका फीचर है। So pollen polarity may be apolar, heteropolar and isopolar। Now next characteristic feature of the pollen grains is aperture, मतलब छोटे छोटे छिद्रों का पाया जाना। Aperture especially delimited region or an opening in a pollen grain wall, colpus, or it may be porous or rounded। Colpi are regarded as more primitive than the pores, according to the classification of Takhtajan, which is phylogenetic 1। Function points of pollen tube exitus, मतलब aperture where pollen tube grows out, और ये वो स्थान है विशेष रूप से जहां से pollen tube बाहर निकलती है। हार्मोमेगेथी का मतलब है रेजिस्टेंट टू डिके। Simple apertures are more primitive than compound।
few apertures are more primitive than several. तो ये सारी चीजें थोड़ा सा टिपिकल है जब हम पढ़ते हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं कि फैमिली इज प्रिमिटिव, फैमिली इज एडवांस्ड। टेक्सोनॉमी में ये कई बार क्या होता है, मौका नहीं मिलता, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो फैमिलीज इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट के हिसाब से प्रिमिटिव कहलाती हैं, जिनमें करेक्टर्स की कुछ ना कुछ कमी हो, मतलब वेल डेवलप्ड करेक्टर्स नहीं हो, विकसित किए गए हो। जैसे यदि हम बेंथम एंड हुकर की बात करें, अलग बात है कि बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन नेचुरल था, पैलेजेंट्रिक नहीं था, लेकिन अननोइंगली उन्होंने ऑर्डर रेनेल्स को, जो कि पहला ऑर्डर माना जाता है, सबसे पहले रखा। उसमें कुछ फैमिलीज ऐसी है, जैसे फैमिली वेंट्रेसी, जिसमें कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो करेक्टर जिम्नोस्पर्म से मिलते हैं और वो इंडिकेट करते हैं कि एंजियोस्पर्म का विकास जिम्नोस्पर्म से हुआ। जैसे एब्सेंस ऑफ वेसल्स। वेसल्स जनरली सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाती है, लेकिन ऑर्डर रेनेल्स में, जो कि बेसिकली प्रिमिटिव ऑर्डर कहलाता है। और एडवांसमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो हम डाइकॉट्स में सबसे एडवांस फैमिली कंपोजिटी या स्ट्रेसी मानी जाती है, और मोनोकॉट्स में ऑर्किडेसी मानी जाती है, क्योंकि उसमें सारे गुणों का विकास है। यदि हम इवन कैपिटोलम या हेड की बात करें, कंपोजिटी के विशेष इन्फ्लोरेसेंस की बात करें या बाकी कैरेक्टर्स की बात करें, तो उसमें सारे गुणों का विकास हो चुका है। और कुछ फैमिलीज जिनमें नहीं हुआ है उनको हम कहेंगे प्रिमिटिव, और जिनमें हो चुका है उनको कहेंगे हम एडवांस। तो उस सेंस में ये सारी चीजें टेक्सोनॉमी में हम बात करते हैं। कॉल्पस elongated aperture और ए सब slit or groove aperture occurring at the distal pore. Porous circular aperture. The number of aperture of any shape can be designated by appending the prefix mono, di, tri, tetra, penta, hexa or poly to the terms colpate or porate. तो उस सेंस में हम ये सारी चीजों को पहले लगाए। तो मोनोकॉल्पेट, ये जैसे मैग्नोलिएसी का आपका फीचर है, ये भी आप देख रहे हैं एस्ट्रेसी में मोनोकॉल्पेट, आपको मोनोकॉल्पेट नजर आता है। पोएसी में मोनोकॉल्पेट है, ये ट्राइकॉल्पेट है। ऐसे तो केवल आप देख रहे हैं, दो ही दिखा रहे हैं यहाँ पे। यदि साइड व्यू देखेंगे तो आपको ये तीन नजर आएंगे। ये एकेंथेसी में दिस इज ट्राइपोरेट, दिस इज इन ट्राइपोरेट एंड फैमिली कुकुरबिटेसी। ये सारे पॉलन ग्रेन का बहुत क्लोजअप लिया गया है पॉलन एपरेचर। बस आपको तो जल्दी से थोड़ा आइडिया आपको देना है। एमरेंथिसी है, कॉन्वोल्यूलेसी में इस तरह होता है। पेंटोपोरेट कंडीशन भी होती है कुछ केसेस में। सिस्टमैटिक्स रिसर्च स्टडीज, जैसे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनग्रूव पॉलन। मैनग्रूव आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत विशेष प्लांट्स हैं जो सामान्यतः एस्चुरियन वाटर या ब्रैकिस वाटर, जहाँ पे सारी नदियां मिलती हैं समुद्र से, और ज्यादा साल्ट होने की वजह से ऐसे प्लांट्स वहां इन क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जैसे सुंदरवन इलाका। The study revealed a crucial relationship between pollen and the mangrove families. So again, let's remember pollen aperture. They may be monocolpate, triporate, monoporate, polyporate, tricolpate, and pentoporate. Now, another characteristic feature is pollen size. Pollen size can vary tremendously across taxa. Size is typically measured in terms of both the polar diameter and the equatorial diameter. Typical pollen grains का जो size है वो 25 to 50 millimicron होता है. Pollen diameter ranges from less than 5 millimicron to more than 200 millimicron. तो ये बहुत सारे प्लांट्स के pollen grain diameter, जैसे अकेसिया में
30 to 50 है, बोहेनिया में 100 है, कुकुरबिटेसी में 100 to 200 और मालवीसी में काफी बड़े डायमीटर के पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं. It can be inferred from the table that Boreas family has a small pollen, while the mallow and the cucumber families have large pollen grains. These are some of the examples of the pollen size of the family, different families. Now pollen shape. Generally they are spheroidal, मतलब अक्सर गोल होते हैं, जिनको ग्लोबोस या बॉल शेप्ड भी कहा जाता है. This is the characteristic feature of the family Rubiaceae. This is Cucurbitaceae. Oblate, they are compressed along the polar axis like tangerine, थोड़ा compressed होते हैं, दबे हुए. Again oblate and in Apocynaceae and Euphorbiaceae, जैसे हल्का सा दबा दिया गया है ऊपर से. This is prolate. They are elongated along the polar axis like a cucumber. Again prolate. Prolate in Euphorbiaceae, Rhizophoraceae. These are some of the examples of the pollen shape in different families. So pollen shape may be spherical, मतलब round, oblate और prolate. तो oblate में थोड़ा सा ही दबा होता है, prolate में थोड़ा ज्यादा दबा होता है, इसलिए वो आपका elongated नजर आती है. Pollen sculpturing, ये ही सबसे खूबसूरत पार्ट है आपका pollen पेलेनोलॉजी का, कि बाहर की जो सरफेस एक्साइन, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर हमको नजर आ जाते हैं, जैसे स्पाइन जैसे संरचना दे रही है, वॉट नजर आ रहे हैं. These are the examples of Asteraceae. बहुत ज्यादा स्पाइन्स होते हैं. जैसे Scariophyllaceae, तो आप इनकी संरचना के आधार पे भी पहचान सकते हो. यदि पॉलन तो क्योंकि हर जगह मिलेंगे, तो पॉलन का अध्ययन करेंगे तो उससे एक अंदाजा हो जाएगा कि ये इस फैमिली का पॉलन ग्रेन है. पिटेड सरफेस है, कहीं पे आप देखें ब्रेन लाइक है. These are the examples of Acanthaceae and Fabaceae. Rugulate, reticulate, pollen wall structure का आप देखें तो आपको इस तरह नजर आएगा. साइड व्यू, एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल व्यू, क्योंकि एक्साइन लेयर भी आपकी डिवाइड होती है एटेक्साइन एंड एंडेक्साइन में. This is tectate, columnate, रूफ एंड फुट लाइक लेयर होती है, जैसे छत है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये बहुत डिटेल संरचना दिखाने की कोशिश की है. So let's summarize palynological features used in plant systematics or plant taxonomy are pollen nucleus number, storage product, pollen unit, pollen polarity, pollen aperture, size, shape, sculpturing, and wall structures. So this is about a general view about the palynology और pollen grain science. तो आपको मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसी तरह बस इतना ही पढ़ना है आपको. ये आपका लास्ट टॉपिक था. कुछ बच्चे अभी तक जुड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनकी क्या यूटिलिटी है. मैंने अपनी तरफ से आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दिया. सो
Best of luck for the exam in advance.